Okay. So it is traditional and modern. Traditional basically related to the raising of funds, while the modern related with the raising and utilization of the funds. Okay, it uses the different models. There are three basic decision: financing decision, investing decision, and dividend decision. Financing decision means what are the sources of finance. Investing decision means where we have to invest in short term project, in long term project. And dividend decision, how much we have to return. Okay, three basically it related to the three basic decision, while the traditional function only related to the raising of fund. It doesn't focus on the utilization of the funds. Okay, I hope it is clear to everyone. Yes, हाँ ma'am. मैम. Now the objectives of financial management, which is very important. There are basically two objectives of the financial management: profit maximization and the wealth maximization. Okay, what are the profit means? Profit is the main aim of the every business. Profit earning is the main aim of every business. No business can survive without profit. Is it possible any business can survive without profit? No. No, ma'am. In a small business, even in a small business, we expect the high profit. Okay, in a small business even we expect the high profit. That's why no business can survive without profit. And it is profit is the measure of efficiency, how business your efficient is. High profit, high efficient; low profit, low efficient. Protection against risk, profit earning होगा तो it will be protect your risk. It is a barometer, main source of finance, essential for fulfilling social needs. What are the drawbacks of the profit maximization? It ignores the time value of money and it ignores the risk factor. Okay, this is the two major drawback. ये time value of money and risk factor अभी आपको अच्छे से time value समझ में आएगा. Okay, present value of money is more than present rupee earned today is more than the future value. Okay, a rupee earned today, अभी तक स्टूडेंट्स क्लास में एंटर ही कर रहे हैं. And it is unclear meaning of profit. What is wealth maximization? Wealth maximization is appropriate objective. Here we focus on the maximization of the shareholder wealth, how we have to increase the earning per share of the equity shareholders. Okay, maximum number of shareholders owned, share owned outstanding upon current stock price per share. Maximum stockholders wealth refers to maximum current stock price per share, means how we have to increase the earning per share of the equity shareholders. Here we do not focus only on the profit. Here we focus on the how we have to increase the earning per share of the shareholders. Okay, here we focus on the shareholders. It serves the interest of all, long run survival and growth of the firm. Consider risk factor and time value of money. It consider risk factor and time value, while the profit maximization ignore the risk factor and time value of money. Okay, what are the drawback? It is not descriptive, only one drawback. Okay, I hope it is clear to everyone. मैम Profit एक क्वेश्चन है. maximization and wealth maximization. Yes. मैम, हाउ एनजीओ सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट. What? मैम एनजीओ कैसे It is सर्वाइव करते work हैं? for the social purpose. तो मैम वो तो प्रॉफिट जनरेट करती ऑब्जेक्टिव है ना. ऑब्जेक्टिव से देखिए ना, उसके किसके लिए वो स्टैब्लिश हुआ है. अब किसी का ऑब्जेक्टिव से ये सोशल मोटिव के लिए, देन वी कांट से हर टाइम तो आपका मोटिव्स अलग है, दूसरा पर्सन कर रहा है तो उसका मोटिव्स अलग है. ओके, in financing management there are three types of decision: investment decision, financing decision, dividend decision. Investing decision means वे पहले फाइनेंसिंग देखेंगे, व्हाट आर द सोर्सेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन, लिवरेज. ये सब हम लोग टॉपिक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे. What are the investment decision means where we have to invest in short term project or in long term project. When we invest our sources in long term project it is called as a capital budgeting. And to आज का यही आप लोग का टॉपिक है कैपिटल बजटिंग का. ओके, and when we invest in the short term project, that it is called then it is called as a working capital management. आज का आप लोग का जो मेन थीम है वो क्या है, कैपिटल बजटिंग है. आज हम लोग कैपिटल बजटिंग के मेथड्स, क्या होता है कैपिटल बजटिंग, यही पढ़ेंगे. ओके, डिविडेंड डिसीजन मींस हमको कितना डिविडेंड देना है और हमको कितना रिटेन करके रखना है, कितना डिविडेंड नहीं देना है. ओके, रिटेन अर्निंग सबको पता है.
हाँ मैम। Yes. Retained earning, the part of profit which we do not distribute to the shareholders. Okay, that is called as a return earning. Okay. Finance, business finance क्या होता है? Finance is the lifeblood of business. What are the process of financial planning? Firstly, we plan for the funds. Planning करना है कि मुझे कितनी requirement होगी. Then we will find the sources. How we have to raise the funds. Then disbursement, allocation, investment of fund. Funds को invest करेंगे. Then proper utilization of fund. Funds का proper utilize करेंगे कि उसका return दे सके. Distribution of funds. Distribute करेंगे fund को. Okay, there are two kinds of investment, short term investment and long term investment. मैंने पहले बोला long term investment अगर आप करते हो तो that is known as the capital budgeting. and इसके other name कौन कौन से है? irreversible investment decision, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हो तो क्या उससे चेंज करना पॉसिबल है स्टूडेंट? शॉर्ट टर्म का अगर आपका 1 ईयर का है, उससे लेस देन है, तो आप तो उसे चेंज कर सकते हो, बट अगर आपने कोई 10 साल 15 साल के लिए किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया तो इट इज पॉसिबल टू चेंज. No, ma'am. That's why it is called as a irreversible investment decision, and it is fixed investment decision or it is non-current investment decision because it is related to the long term investment. Okay, what is short term? Short term is also called as a circulating investment, revolving investment. Revolving क्यों? आपके बिजनेस में हमेशा पैसा रन करते रहता है, रिवॉल्व करता है अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, करंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अभी मैंने बताया था आपको, अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो उसे कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म में उसे इन्वेस्ट करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ वर्किंग कैपिटल investment. I hope it is clear, capital budgeting and working capital. हाँ मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, काफी फास्ट हो जा रहा है. ओके, ये बहुत कॉमन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ. अभी मेजर टॉपिक तो आप लोग का बचा हुआ है विच इज कैपिटल बजटिंग. हाँ मैम, इफ फिर यू भी ओके मतलब बहुत आई विल फास्ट हो रहा है. ओके आई विल. ओके. Long term investment decision, what is long term? The benefit of which will realize more than 1 year. Long term तो सबको पता है कि more than 1 year होता है till the economic life of project, and it is irreversible decision. एग्जाम में क्वेश्चन आया है कैपिटल बजटिंग का अदर नेम, तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स है ये सब कैपिटल बजटिंग के अदर नेम्स है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग उसको याद रखिए. ओके, process of making investment decision in capital expenditure. So yeah, here we will discuss what is capital expenditure. Okay, so what is capital expenditure and what is revenue expenditure? ये तो बताने वाली कोई चीज नहीं है. कैपिटल आप किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो दैट इज लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट इज नॉन रिकरिंग आइटम, जो आपका हमेशा नहीं होता है. रिकरिंग आइटम जो आपका हमेशा खर्चा होते रहता है. ओके, ये शॉर्ट टर्म से होता है. ओके, और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट होता है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट होता है. एंड इट इज इंक्रीज द वैल्यू, इट डजंट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फॉर एग्जांपल, आपका कोई बिजनेस था, कोई आपका फिक्स्ड एसेट्स है, आपने उस पे कोई आपका मशीनरी है वो खराब, मतलब कि उतना अच्छा प्रॉपर वर्क नहीं करता, आपने उस पे 10-20 हजार रुपए लगा दिया, तो उसकी वर्किंग क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. तो इट डज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. जो पहले वो 1 आवर में 10 यूनिट प्रोड्यूस करती थी, अब वो 1 आवर में 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगी. आपने उसमें कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर कर दिया, तो दैट इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इट ओनली मेंटेन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ओके, आपका कोई मशीनरी खराब है, आपने उसमें थोड़ा बहुत प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह करा दिया, कोई स्मॉल अमाउंट का एक्सपेंडिचर कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मशीनरी है वो बस प्रॉपर वर्क करेगी. तो दैट इज मेंटेन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ओके, एंड इट अफेक्ट द बिजनेस फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करेगी. अगर आप किसी भी एक्सपेंडिचर करते हो, कोई अच्छा खासा पैसा अपने मशीनरी पे इन्वेस्ट किया, तो वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगा. एंड इट अफेक्ट्स 1 ईयर ओनली. आप कोई प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह करा दिए तो आपको सिर्फ उस ईयर के लिए ही आपको इफेक्ट होगा. आई होप इट इज क्लियर. अब तो जल्दी नहीं है. हाँ मैम, सही है. इट इज क्लियर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हाँ मैम. Yes, ma'am. ओके,
expenditure incurred at one point of time, whereas benefit will realize at different point of time in the future. Okay, expenditure तो आप एक टाइम पे करते हो, लेकिन benefit क्या होता है, realized at different point of time in the future. Expenditure incurred for acquiring or improving the value of fixed assets. Okay, cost of addition, expansion, improvement or alteration of fixed asset. नॉन फ्लेक्सिबल होता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड है. इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. It is also known as the long term investment decision, planning capital expenditure, analysis of capital expenditure. Okay, they are strategic investment decision. Capital budgeting are the strategic investment decision. Okay, अब मेन आपका स्टार्टिंग होता है पॉइंट, ये सब तो बस कहानी था. मेन आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग. मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग इज क्लियर टू एवरीवन? Meaning of capital budgeting is clear? Yes, ma'am. What is capital budgeting? What is capital budgeting? रिवर्सिबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो इसमें मैम लॉन्ग टर्म के लिए. Investment of fund in the long term in project, it's called as a capital budgeting. Okay, while investment of fund in the short term project, it is called as a working capital management. Okay, so what are the objectives of capital budgeting? Basically there are two objectives: capital deepening and capital widening. What is capital deepening? To decrease the cost. And what is capital widening? To increase the productions. Okay, need for capital budgeting, it is long term investment, difficulties of investment decision, to reduce the cost को कम करने के लिए, long term effect in profitability, आपको long term effect देने के लिए profitable, upgradation of technology to enhance the size of productivity. Okay, this is the major important topic is process of capital budgeting. इससे बहुत बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है process of capital budgeting से. ये आपको इसका जो सीक्वेंस होता है उसे अरेंज करना होता है. इसका जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में आपको अरेंज करने के लिए देगा. तो व्हाट आर द सीक्वेंस? फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, सेकंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट, थर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड फोर्थ इज रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस. पहले हम लोग प्रोजेक्ट को जनरेट करेंगे, फिर इवेलुएट करेंगे, उसका देखेंगे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है, उस पे क्या उसकी फिक्सिंग प्रायोरिटीज है, क्या उसका अप्रूवल है, चेक करेंगे. देन इम्प्लीमेंट करेंगे उस प्रोजेक्ट को, देन उसके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को. Process is clear to everyone? Process is very important, students. Process is clear to everyone? Give your reply at least yes or no. मैम एक बार और एक्सप्लेन कीजिए. Process में basically क्या है, generation of project. Firstly we generate the project, then we evaluate the project, क्या उसका profit है, क्या loss है, क्या कितना risk होगा, कितना cost होगा. Then for third में क्या होता है, उसके बाद हम लोग एक project को implement करेंगे, implement करने के बाद उसके performance को check करेंगे, compare करेंगे actual performance को expected performance के साथ, क्या deviation है वहाँ पे उसको find out करेंगे, then हम लोग देखेंगे. It is clear? Now it is clear process. यस हाँ मैम. मैम. Decisions regarding capital budgeting, it is also one of the important topic of your subject. Decisions regarding capital budgeting, there are three kind of decision, students. There are three kinds of decision: independent project decision, mutually exclusive project decision and capital rationing. Independent project, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कैपिटल रेशनिंग. इसको अच्छे से समझिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आगे का कोई भी टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आएगा.
What is independent project decision? Independent project बोलता है कि selection of one project doesn't mean to rejection of other project. मतलब आप एक किसी project को select कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप other project को reject कर रहे हो. Each project has its own criteria to accept and reject. अब सारे project का अपनी अपनी criteria accept and reject करने का. Acceptance of one project doesn't mean the rejection of other. Okay. बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन क्या बोलता है? एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रोजेक्ट मींस रिजेक्शन ऑफ अदर प्रोजेक्ट. मतलब आप किसी एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आप दूसरे प्रोजेक्ट को एकदम रिजेक्ट कर रहे हो. ओके. कैपिटल राशनिंग क्या है? आपके पास ढेर सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है बट यू हैव लिमिटेड फंड. आपके पास उतना फंड ही नहीं है कि आप सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सको. यू हैव लिमिटेड फंड going to take your decision. Capital rationing is related with that very much situation where you have limited funds to invest in number of projects. Okay. आपके पास उतना पैसा ही नहीं है कि आप सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे. अरेंज द प्रोजेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब अपने बजट के हिसाब से आप प्रोजेक्ट को अरेंज करते हो. डिसीजन इज क्लियर टू एवरीवन? फर्स्टली टेल मी. 1 मिनट ले लीजिए, आप लोग उसको देख लीजिए. डिसीजन इज क्लियर? मैम कैपिटल रेस्टिंग एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए. कैपिटल रेजनिंग का मतलब है कि आपके पास ढेर सारे प्रोजेक्ट के ऑप्शंस है बट आपके पास पैसा नहीं है. इन सिंपल वर्ड्स, आपके पास प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं कि हाँ इस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है. तो आप अपने बजट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में उसको ऐड करोगे, देन यू विल इन्वेस्ट. ओके. विच प्रोजेक्ट इज सुटेबल फॉर मी, उसमें मतलब इन्वेस्ट करेंगे हाँ जो बेस्ट होगा. हाँ. आई होप इट इज क्लियर. हाँ मैम. Okay, now we are going to discuss about methods of capital budgeting. There are two kinds of classification. First is traditional methods and second one is modern method. Traditional method is also known as the non-time adjusted method, means it doesn't consider the time value of money, or unsophisticated method or ignore the time value of money, or non-discounted cash flow techniques. Okay, but मॉडर्न टेक्निक्स के अदर नेम कौन कौन से? इट इज टाइम एडजस्टेड मेथड, मींस इज कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इट इज सोफिस्टिकेटेड मेथड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स. ओके. अब ट्रेडिशनल मेथड्स में कौन कौन से आते हैं? पे बैक पीरियड मेथड, पोस्ट पे बैक, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न विच इज ऑल्सो नोन एज द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. एंड मॉडर्न में कौन कौन से आते हैं? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, and last is terminal value methods. Okay, this is clear? This is clear to everyone? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए दोनों क्या पॉइंट. इसमें रिपीट करना है? ये ट्रेडिशनल की नेम है और ये मॉडर्न की नेम है, इसमें क्या रिपीट करना है? मैंने तो अभी कुछ समझाया भी नहीं है. मैम वही नहीं समझ में आया. इसमें क्या समझना है? ट्रेडिशनल में ये 2 मेथड है और मॉडर्न में ये 4 मेथड है, तो इसमें क्या समझना है? मैम अब इसको भी मैं बताऊं क्या? अभी इन सबका डिस्क्रिप्शन, अभी इन सबका करने तो दीजिए मुझे. ओके मैम. ट्रेडिशनल में 2 मेथड्स है और मॉडर्न में 4 मेथड्स है. अब इसमें क्या बताऊं मैं? ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स के नेम है और करके, और ये मॉडर्न मेथड्स के नेम है. अभी मुझे समझाने तो दीजिए सारा मेथड अलग अलग. Payback period method. What is payback period method? It is also called as a payout method and payoff period method and recoupment method. It is based on the cost recovery. Means आपने जितना इन्वेस्ट किया है वही मुझे रिकवर हो जाए. बेस्ड ऑन द कॉस्ट रिकवरी, जितना आपने कॉस्ट लगाया है वही रिकवर हो जाए. द स्मॉलर द प्रोजेक्ट बेटर इट इज. जितना स्मॉल प्रोजेक्ट होगा उतना अच्छा होगा, जितना जल्दी हमको कॉस्ट हमारा रिकवर हो जाएगा. ओके. पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट अपॉन रिटर्न. कॉस्ट अपॉन रिटर्न. ओके. the length of time needed for the net cash saving to equal to initial outlay or investment
This method is more of capital recovery rather than the measure of profitability. मतलब इसमें ज्यादा हम प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं फोकस करते, हम अपने कैपिटल रिकवरी, जितना हमने इन्वेस्ट किया है बस हमको उतना ही रिकवर हो जाए. ओके, जितना हमने इन्वेस्ट किया है बस हमको उतना ही रिकवर हो जाए, हमको प्रॉफिट का कोई वो नहीं है. ओके, दैट इज नोन एज द पे बैक पीरियड मेथड. जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना जल्दी मुझे जितना पैसा लगाया था वो मुझे मिल जाए. दैट इज कॉल्ड एज अ पे बैक पीरियड मेथड. I hope it is clear. हाँ मैम. Yes, ma'am. What are the merits? Simple and easy to understand. It is suitable for those firms which are suffering from the liquidity crisis. आपके बिजनेस में लिक्विडिटी क्राइसिस है तभी आप फंड की इतनी रिक्वायरमेंट कर रहे हो, अपने कॉस्ट पे ही फोकस कर रहे हो कि वही रिकवर हो जाए. ओके, सुटेबल व्हेन देयर इज अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. Drawbacks: it ignores the time value of money and it doesn't consider the income till its economic life. मतलब पूरे जितना उसके प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक लाइफ है उसके पहले ही आपको जहां तक कॉस्ट मिल जाता है आप वहीं से बस सेटिस्फाई हो जाते हो, पूरे इनकम को रिकवर नहीं करते हो. ओके, यहाँ पे इट इज फोकस्ड ऑन द कॉस्ट रिकवरी, नॉट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, here profit means profit before depreciation and after tax. आपने पढ़ा होगा ये कैश फ्लो में, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स का यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब होता है. एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं कि पे बैक पीरियड में रेवेन्यू मींस प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन और व्हाट. सो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स. ओके, आई होप इट इज क्लियर. दिस मेथड इज क्लियर टू एवरीवन. मैम This इग्नोर method टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका मतलब? इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली होता क्या है कि दैट रूपी अर्न टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम रूपी अर्न टुमारो. जो पैसा आज हम कमा रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है जो हम सेम अर्न करेंगे रूपी कल, क्योंकि आज हमें मिलेगा तो हम उसे इन्वेस्ट करके और मनी उससे जनरेट कर सकते हैं. ओके, तो ये क्या करता है, ये इस फैक्टर को इग्नोर करता है. ओके, मतलब मैम इन्फ्लेशन कह सकते हैं? कैसे इन्फ्लेशन कह देंगे? मैम इन्फ्लेशन फैक्टर होगा तभी तो कल वैल्यू कम होगी उसकी. क्यों कम होती है? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. आज मुझे पैसा मिला, मैंने उस मनी को कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो कल वही मेरा पैसा क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा. लेकिन जो कल मुझे मिलेगा वो तो पहले वाले से लेस होगा क्योंकि मैंने उसे इन्वेस्ट करके अर्न कर लिया ज्यादा. सेकेंड ओके मैम. मेथड इज एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड. Accounting rate of return method, which is also known as the average rate of return method, and it is the improvement over payback period method. It is the improvement over payback period method. ये क्या बताता है? It consider the income till the economic life of project. जैसे उसमें था कि वो पूरा consider नहीं करता था, ignore करता था. It ignores the time value of money. This method is based on the accounting information where profit means profit after depreciation and tax. वहां पे profit का मतलब क्या था? Profit before depreciation and tax. यहाँ पे होगा profit after depreciation and tax. Okay? Depreciation means क्या होता है? Decrease in the value of fixed asset except the land and goodwill. Okay? I hope इतना तो पता ही होगा आप लोगों को. Yes, ma'am. हाँ मैम. ARR basically helpful in determining the annual percentage rate of return of the project. Okay, it is basically helpful in determining the annual percentage rate of return of the project. मतलब कितना annual आपको return होगा उसका percentage ये बताता है. Okay, accounting rate of return can be calculated as original cost as average cost. Okay, ये आपका formula है, इसको बस देख लीजिएगा आप लोग. Sum of estimated income after tax and depreciation, क्योंकि profit यही consider करते हैं life of project. ARR में फिर क्या होता है? Average annual income after depreciation and average investment. Okay, I hope it is clear. Accounting rate of return and payback period method is clear to everyone. It is clear. If you will not Yes, reply, ma'am. then मैं start करूंगी. मैं किसी से पूछूंगी नहीं अब. हाँ मैम. If you don't have to give reply, you may leave my class.
सेकंड इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है? ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है? मैम ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल है बेटा। बेटा अभी यहाँ पे बताया था ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज मॉडर्न मेथड। दो मेथड ही आपका ट्रेडिशनल था जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंक्लूड करता है और रिस्क फैक्टर को इग्नोर करता है। मॉडर्न में कौन कौन सा है, एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी मेथड and terminal value methods. Okay, now it is clear, traditional and modern. Yes, ma'am. So what is net present value? What is net present value? It consider the income till the economic life of project. What is NPV? Present value of cash flow minus present value of cash outflow. ये एग्जाम में आपके फॉर्मूला आता है. Okay, present value of cash inflow minus present value of cash outflow is equal to NPV. मॉडल मेथड टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, ये मॉडल मेथड है. यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, अ रूपी अर्न टुडे इज मोर देन द रूपी अर्न टुमारो, अ बर्ड इन द हैंड प्रिंसिपल. इसे बर्ड इन द हैंड प्रिंसिपल भी बोलते हैं. ओके, अ बर्ड इन द हैंड प्रिंसिपल. ओके, so what are the process of calculating NPV? Determine the cutoff rate or discount rate. Compute the present value of investment, means present value rupee earned today is more than rupee earned tomorrow, and compute the present value of cash inflow. Okay, एनपीवी का फॉर्मूला अभी बताएं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. यहाँ पे बताए थे एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये इसका फॉर्मूला है. अब एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन आता है. How we will accept the project, when we will reject the project. When NPV is greater than 0, then we will accept the project. When NPV is less than 0, we will reject the project. When NPV is equal to 0, then indifference, there is a no acceptance and rejection of project. I hope it is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रही हूँ ना, सबको समझ में आ रहा है ना? मैम इसमें थर्ड केस है MP इक्वल टू 0, मत क्यों यहाँ पे नो एक्सेप्ट नो रिजेक्शन होगा? तो 0 के बराबर है, आपका प्रोजेक्ट 0 प्रॉफिट दे रहा है, तो नो रिजेक्शन नो एक्सेप्टेंस, इनडिफरेंस होगा. ना उसको एक्सेप्ट करेंगे ना ही रिजेक्ट करेंगे. हाँ, इनडिफरेंट सिचुएशन हो जाता है वो. ओके. और ये एनपीवी कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला है, इतना न्यूमेरिकल तो आता नहीं आपके एग्जाम में, एक बार देख लीजिएगा. प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस 100 अपॉन और पावर में n अपॉन r बाई 100 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड एनपीवी का ये जो फॉर्मूला, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, सी से कैश आउटफ्लो है, आर से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, A1, A2, A3 आपका कैश इनफ्लो फॉर वेरियस इयर्स है. ओके, हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. ओके, आई होप इट इज क्लियर. इट इज हाँ, क्लियर मैम. टू एवरीवन. Yes, ma'am. Okay, third method we are going to discuss is internal rate of return method. ये कौन सा है, मॉडर्न है कि ट्रेडिशनल है? Ma'am मॉडर्न. modern. मॉडर्न है या ट्रेडिशनल? अभी हम लोग ARR मेथड पढ़े थे ना, याद है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जो मैंने बताया था, इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द एनुअल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट. अभी बताया मैंने. यस मैम. तो ARR और इंटरनल में बेसिकली डिफरेंस क्या है? ARR और IRR, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. इट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड ARR डजंट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. Okay, are you getting my point? हाँ, Are मैम. you getting my point, हाँ students? मैम.
इट इज ऑल्सो नो, ये अदर नेम है डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, सेम सब कुछ है ARR की जैसा, बस इसमें IRR में क्या है, इट विल कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट ARR क्या करता है, इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये सब इसके अदर नेम है, बाकी सब कुछ सेम है। एंड एट विच ना NPV इज इक्वल टू 0 होता है, ये सब बस फॉर्मूला है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। IRR is equal to present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow, okay? And present value of cash inflow minus present value of cash outflow is equal to 0 होता है, okay? Accept decision, IRR is greater than cost of capital, we will accept the project. IRR is less than project, then we will reject, and it is when it will be equal to 0, then there will be indifferent situation, okay? I hope it is clear. यस मैम, ये जो फार्मूला है समेशन दिया हुआ है PVCI, मैम इसको याद कर लें या इसको मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे समेशन इसको ऑफ याद करना PVCI? है आप लोग को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके मैम। It is clear to everyone? हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने ARR और IRR में आप लोग को डिफरेंस भी बता दिया। अभी आप लोग का MCOM में एडमिशन तो होने दीजिए, व्हेन प्रोफेसर्स विल टेक द क्लास, यही सब एकदम क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ARR एंड IRR, तब आप लोग याद करोगे मुझे, हाँ मैम ये बताई थी। अभी आप लोग को हल्के में टॉपिक लग रहा है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइनेंस के जितने भी टॉपिक मैं आप लोग को कराऊंगी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ओके? NPV और IRR में क्या डिफरेंस है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अभी मैंने बताया दोनों क्या है, मॉडर्न है कि दोनों ट्रेडिशनल है? दोनों क्या है? Modern है मैम। वेरी गुड। NPV एंड IRR दोनों क्या है? मॉडर्न है। NPV is determined by discounted the future cash flow of project at a specific rate. Cash flow of project are discounted at suitable rate by using the hit and trial error method. जब आपके रेवेन्यू हर ईयर में डिफरेंट होंगे, then we will use the hit and trial methods, okay? And it is consider the market rate of interest and it is ignore the market rate of interest. यही वाला आपका मेजर डिफरेंस है, ये सेकंड पॉइंट वाला, okay? Now last method is profitability index methods. Profitability index method is just reverse of payback period method. It is just, मैं सारे methods को एक दूसरे से relate कर दे रही हूँ कि आपको बाद में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट, ओके? जिससे आपको बाद में रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। What is profitability index method? It is just opposite of payback period method. यहाँ पे लिखा हुआ है, it is written here, it is opposite of payback period methods. पेबैक पीरियड मेथड्स में मैंने बताया था, इट बेसिकली फोकस्ड ऑन द कॉस्ट रिकवरी, कि जितना जल्दी हो सके मैंने जितना कैपिटल लगाया वही मुझे रिकवर होता है। बट प्रॉफिटेबल क्या बोलता है कि मुझे प्रॉफिट रिकवर हो जितना जल्दी हो सके, कॉस्ट नहीं, प्रॉफिट पे ये फोकस करता है। दैट व्हाई इट इज नोन एज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। एंड अनदर नेम ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड इज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड और द डिजायरेबिलिटी रेशियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में अभी पिछले बार ही क्वेश्चन आया था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड इज आल्सो नोन एज, तो इट इज नोन एज द डिजायरेबिलिटी रेशियो एंड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड, ओके? आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. यस मैम। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आईआरआर में क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ओके? यहाँ पे क्या है? अपॉन में है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स -1, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। प्रॉफिटेबिलिटी am I audible students? हाँ हाँ मैम। मैम। Screen is visible to everyone? यस मैम।
ये मुझे क्यों नहीं विजिबल है? जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. हाँ मैम। हाँ मैम। Then why it's creating problem? Now screen is visible to everyone? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। Okay. तो यहाँ पे एक्सेप्ट डिसीजन क्या है? Profitability index is greater than cost of capital, then we will accept the project. When it is less than project cost of capital, KO is equal to cost of capital. Okay? KO जो होता है आप लोग का वो cost of capital कहलाता है. Okay? Then we will reject the project. When it is equal to 0, then there will be indifferent situation. Okay? What is terminal value method? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए. It is improvement over NPV method. It assumes that each one of the future cash flow is immediately reinvested. It focus on the reinvestment in any other project at certain rate of return until the termination of the project. मतलब जब तक प्रोजेक्ट का टर्मिनेट नहीं होता तब तक हम लोग उसको दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते रहते हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए. ओके? I hope it is clear to everyone. All the methods is clear to everyone. Payback period method, cost recovery पे focus करना है. Average rate of return, ignore the time value of money, and it basically shows the average rate of return of the project. Net present value, it consider the time value of money. Internal rate of return, average rate of return, और इन दोनों में क्या difference है? It consider time value, it ignore time value. Profitability method क्या बताता है कि हम लोग को जितना जल्दी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट अर्निंग हो, और इट इज अ रिवर्स ऑफ पेबैक पीरियड मेथड. टर्मिनल वैल्यू मतलब प्रोजेक्ट को री इन्वेस्टमेंट का बात करता है. ओके? जब तक उसका वैल्यू खत्म ना हो तब तक प्रोजेक्ट को री इन्वेस्ट करते रहना. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. यस मैम। यस मैंने मैम। नट शेल में भी बता दिया आप लोगों को. किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी नहीं है मैम। ओके, वेरी गुड. अब यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल है, उसको भी देख लीजिए तो आप लोग को ज्यादा हो. ये यहाँ पे पे बैक पीरियड. अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹1 lakh and yield an annual cash flow of 20,000 for 8 year. Compute the payback period method. Payback period का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स? Payback period का फॉर्मूला क्या बताया था? कॉस्ट अपॉन रिटर्न. यस, कॉस्ट अपॉन रिटर्न. तो कॉस्ट यहाँ पे कितना है? कॉस्ट यहाँ पे कितना है? 1 लाख. 1 लाख. और रिटर्न कितना है? 20,000. 20,000. तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 साल में आपका जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगा. ओके? आई होप इट इज क्लियर. Yes, हाँ मैम. ma'am. 1 लाख जब आपका रिटर्न है तो आपको 20,000 अर्न हो रहा है, तो आपको 5 साल में तो आपका कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगा. 20 into 5 is equal to 1 lakh. Are you getting my point? हाँ मैम. हाँ मैम. क्लियर है सबको? हाँ, ma'am. यहाँ पे तो क्या था कि ये जो कैश इनफ्लो था वो सेम था 8 इयर्स के लिए, मतलब 20-20 हजार सब ईयर में अर्निंग होगा. अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में फर्स्ट ईयर में ज्यादा प्रॉफिट हो, नेक्स्ट ईयर में लेस हो, उसके बाद उससे ज्यादा हो या कम हो. तो यहाँ पे देखिए बोलता है डिटरमाइन द पेबैक पीरियड फॉर पीरियड व्हिच रिक्वायर अ कैश आउटफ्लो ऑफ 10,000 एंड कैश इनफ्लो ऑफ 2,000, 4,000, 3,000 एंड 2,000. यहाँ पे अर्निंग क्या है? डिफरेंट है. डिफरेंट है ना?
यस मैम। कैश हाँ, इनफ्लो मैम। डिफरेंट है ना, यहाँ पे वहाँ पे तो सेम था 20,000 फॉर 8 इयर्स, यहाँ पे क्या है डिफरेंट है, तो इसको दूसरे मेथड से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले कम्युलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं, कम्युलेटिव कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करते हैं। 2000, 4000, 3000, 2000 लिख दिए, फिर यहाँ पे 2000 कम्युलेटिव कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किए 6000, फिर इन दोनों को ऐड किए 6 और 3 9, 9 और 2 को ऐड किए तो 11,000। ओके, तो आपका कॉस्ट कितना था, 10,000 रुपए, 10,000 था ना आपका कॉस्ट। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? हाँ, मैम। लेकिन यहाँ तक आपको क्या हो रहा है, 9,000 रुपए रिकवर हो जा रहा है 3 साल में, 1 2 3, उससे ज्यादा जाओगे तो कॉस्ट से ज्यादा रिकवर हो रहा है, तो आप प्रेफर करोगे 9,000। तो 3 ईयर में आपको 1,000 रुपए कम रिकवर हो रहा है, ठीक है। ये 1,000 कम है, 9,000 आपको 10,000 करना था ना, 1,000 कम रिकवर हुआ। और किस में से करना है अभी रिकवर, ये 2,000 में से, ये 2,000 में से 1,000 करना है ना अभी रिकवर, तब तो 10,000 होगा। आर यू हाँ, गेटिंग माय मैम। पॉइंट? फिर हाँ, मैम। इनटू 12 कर देंगे तो 3 ईयर 6 मंथ्स में आपको पूरा ये पैसा मिल जाएगा, कितना, 10,000 आपका। कितने ईयर में, 3 इयर्स, ये 3 इयर्स प्लस 6 मंथ्स, 6 मंथ्स और करेंगे तो आपको पूरा पैसा क्या होगा, मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। यस, मैम। ये सबको क्लियर है ना? किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. है तो फिर से पूछ लीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं छोटे छोटे। इट इज क्लियर नाउ, किसी को कोई क्वेरी नहीं है ना? नो, मैम। नो Okay, मैम। one more numerical. Yes. Which one project is better if net profit before depreciation and after tax is given and cost is 20,000? Okay. अब यहाँ पे X प्रोजेक्ट दिया हुआ है और एक Y प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ओके। एंड आपका कितना अर्निंग है, 20,000, ओके। तो इसका कम्युलेटिव निकालेंगे, 1,000 देन 3,000 देन 7,000 देन फिर 12,000 देन 20,000। कम्युलेटिव कैसे निकालना है, इतना तो सबको क्लियर है ना? हाँ, मैम। फिर बोलता है कि इसमें कम्युलेटिव वाई प्रोजेक्ट का 2,000, 6,000, 12,000 एंड 20,000, ओके। अब प्रोजेक्ट एक्स कितना टाइम ले रहा है 20,000 को रिकवर करने में, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर ले रहा है ना 20,000 को रिकवर करने में। हाँ, मैम। बट वाई प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर में ही आपको 20,000 रिटर्न दे रहा है, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट को चूज करोगे? वाई। वाई प्रोजेक्ट को चूज करोगे क्योंकि आपको अर्ली अर्निंग दे रहा है एंड रूपी अर्न टुडे इज फार बेटर देन द रूपी अर्न टुमारो। ये कॉन्सेप्ट याद है ना? यस मैम। हाँ। तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय प्रोजेक्ट एक्स टू रिकवर कॉस्ट इज 5 ईयर एंड यहाँ पे टाइम टेकन बाय प्रोजेक्ट वाई टू रिकवर कॉस्ट इज 4 ईयर। सो द प्रोजेक्ट वाई इज बेटर देन द एक्स इन केस ऑफ ओनली पे बैक पीरियड मेथड। आपको जितना जल्दी हो जाए कॉस्ट रिकवर हो जाए, ओके। तो इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस, मैम। किसी को Yes, कोई ma'am. क्वेरी है? एनीवन हैव एनी क्वेरी?
फाइनेंस आप लोग को पढ़ के अच्छा लग रहा है और ऊपर ऊपर से जा रहा है या तो मैम ये सब जो फार्मूला था मतलब कि पहली बार था तो मतलब फर्स्ट टाइम था ना बेटा. व्हेन यू विल रिवाइज देन यू विल गेट द थिंग्स. जितने मैंने वर्ड्स यहाँ पे क्लास में बोले हैं उसको आप लोग बस माइंड में रखे रहना और उसको पढ़ते टाइम अभी क्लास के बाद ही आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेना. फाइनेंस आप लोग का फर्स्ट टाइम है तो आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम. व्हेन यू विल रिवाइज देन इट विल बी ओके. ओके ओके. यस मैम. मैंने आप लोग को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की ट्राई किया है. मैंने आपका कोई बुकिश वर्ड इसमें ऐड नहीं किया था पीपीटी में. सारा मेरा खुद का रिटन वर्ड है. तो मेरे इसमें कोई भी आप जितना भी मैंने क्लास लिया है आप लोग को कोई भी बुक का लाइन नहीं मिलेगा. कोई भी बुक का कहानी मैं नहीं छापती हूँ अपने पीपीटी में. ओके. सो आप ये सारे मेरे वर्ड्स हैं तो आप लोग को इजीली अंडरस्टैंड. और एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, की पॉइंट पूछते हैं. एंट्रेंस एग्जाम में की पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं और फाइनेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ओके स्टूडेंट्स. हाँ मैम. फाइनेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. ओके. सो आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी. सो शैल आई एंड माय क्लास? हाँ मैम. Okay, so it's enough for today. So enjoy your day, students. मैम पीडीएफ अपलोड. Okay, okay. अपलोड हो जाएगा ये. थैंक